Okay, so in this video, we'll be talking about a very important subunit of compounds, organic compounds containing nitrogen, that is benzene diazonium salts. So we have benzene diazonium salts. Okay, so this is going to be very important for class 12th as well as for NEET students. That is benzene diazonium salts. अच्छा, ये जो benzene diazonium salts हैं, ये एमीन्स चैप्टर में इनको स्टडी किया जाता है, एमीन्स चैप्टर में इनको पढ़ा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिगार्डिंग योर कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट और JEE एज वेल एज जो बोर्ड्स के या CBSE के जो पेपर्स होंगे उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 12 से, ठीक है. सो द बेंजीन, टॉकिंग अबाउट द बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, द जनरल formula of benzene diazonium salts is Ar N2 positive and X negative, right? This is the general representation of benzene diazonium salts, that is Ar N2 positive and X negative, where this Ar is aromatic ring, where this Ar is benzene ring or phenyl ring. This Ar is benzene ring. This N2 positive is diazo group, right? This N2 positive is diazo group. So this is diazo group. Whereas this X negative are anions, which are attached to this positively charged diazo group. So X negative is anion. Now this is not important that X negative is always halogens in case of benzene diazonium salts. So in this case, this X negative could be F negative. It could be Cl negative, it could be Br negative, it could be even HBF4 negative, it could be HSO4 negative. So this is one of the important points, that X negative in case of benzene diazonium salts is not always halogens, is not always halide ions. This could be your tetrafluorohydrogen borate. This could be hydrogen sulfate ion as well. So this is the general representation of benzene diazonium salts, that is Ar N2 positive and X negative, right? So after placing the various anions on the place of X negative group, the names differ. इनका नाम अलग अलग हो जाएगा, आप इनके नाम अलग से लिख सकते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर अलग से लिख सकते हैं. So इसके बाद मैं लिख लेता हूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स, ठीक है. मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ BDS, दैट इज बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स. नाउ द नेमिंग ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स इज वेरी सिंपल. लेट्स सपोज वी ड्रॉ अ डायजोनियम सॉल्ट दिस वे, राइट. दिस कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड मान लीजिए इसके साथ हमने Cl नेगेटिव एनाइन बैठा दिया. सो इसका जो नाम बन जाएगा वो बन जाएगा बेंजीन. This is benzene diazonium and this is chloride. So its nomenclature will be benzene diazonium chloride. So this is simply benzene diazonium chloride, right? It's simply benzene diazonium chloride. Similarly, we can replace this X negative by other anions as well. और इनके नाम फिर उसी हिसाब से हम लिख लेंगे. मान लीजिए मैं सेकंड में ऐसा कर दूं, this way, N2 positive and let's say HBF4 negative, N2 positive and HBF4 negative, right? So इसका नाम आ जाएगा benzene. This is benzene diazonium tetrafluorohydrogen borate. So this is benzene diazonium tetrafluorohydrogen borate. So this will be benzene diazonium tetrafluorohydrogen borate. Okay. We could have substituted benzene diazonium salts as well. हो सकता है कि आपके पास benzene diazonium salts को substitute कर रखा है कुछ इस तरीके से, फिर उनका भी नाम हम इजीली लिख सकते हैं. मान लीजिए मैंने ऐसा कर दिया, and let's suppose we have OH group at this position and a diazonium group at this position, that is N2 positive and Cl negative. So take it as very easy. So इसका नाम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स को हम प्रायोरिटी में रखेंगे और इसको हम साइड ग्रुप की तरह ट्रीट कर देंगे. सो दिस विल बी 2 हाइड्रोक्सी, राइट. दिस विल बी 2 हाइड्रोक्सी
benzene diazonium chloride, right? So this will be 2-hydroxy, this way we have 1 carbon, this 2 carbon, so this will be 2-hydroxy benzene diazonium chloride, ठीक है, ये इनका nomenclature हो जाएगा. So benzene diazonium salts are the compounds, these are the basically ionic compounds, I can say crystalline compounds formed from aniline. अच्छा, इनकी प्रिपरेशन की बात कर लें कि इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है. So general representation इनका आ जाएगा Ar N2 positive X negative, where X negative could be your F negative, Cl negative, Br negative और HbF4 negative और HSO4 negative. इनके nomenclature की हमने बात कर ली. अच्छा, बात करेंगे कि बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, राइट? So these benzene diazonium salts are prepared by diazotization reaction. So इनको प्रिपेयर करने की जो टेक्निक होगी, जो मेथड होगा, दैट इज नॉन एज डायazotization रिएक्शन. सो मैं प्रिपरेशन लिख देता हूं. सो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम salts, राइट? सो दीज आर प्रिपेयर्ड बाय डायazotization रिएक्शन. इनको प्रिपेयर करने का जो मेथड है उसको हम बोल देंगे डायazotization रिएक्शन. अच्छा, इन दिस डायazotization रिएक्शन द प्राइमरी amines, the primary aromatic amines, that is aniline, NH2, this is a primary aromatic amine, this is primary aromatic amine, right, which is known as aniline. इस aniline को ट्रीट किया जाता है a solution of sodium nitrate and HCl, which generate nitrous acid basically. So this is treated with a solution of sodium nitrite NaNO2 plus HCl. And this sodium nitrite and HCl, a mixture of sodium nitrite and HCl, a solution of sodium nitrite and HCl, it generates nitrous acid. So इन दोनों से generate होने वाला जो acid होगा, that is HNO2. So it generates nitrous acid. And this nitrous acid is used for the conversion of this primary amine aniline to diazonium salts. ये नाइट्रस एसिड इस NH2 ग्रुप को डायazonium सॉल्ट ग्रुप में कन्वर्ट करने का काम करेगा. ठीक है, कैसे रिएक्शन हो जाएगा देख लेते हैं. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि ये जो रिएक्शन है ये आइस बाथ टेम्परेचर पे देखने को मिलता है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस. इसी को हम लिख सकते हैं, दैट इज 273 केल्विन टू 278 केल्विन. इस टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा. दिस टेम्परेचर इज नोन एज आइस बाथ टेम्परेचर. दिस इज नोन एज आइस बाथ टेम्परेचर. ठीक है, सो कोल्ड कंडीशन में ही बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स को प्रिपेयर किया जा सकता है. जब आपके एक्वस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा दैट रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 5 डिग्री एंड मोस्टली इट इज 0 डिग्री. ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही सॉल्यूशन को वार्म किया जाएगा तो आप ये देखेंगे कि ये जो आपके पास बनने वाले सॉल्ट्स होंगे वो सॉल्ट्स नहीं बनेंगे बल्कि वो हाइड्रोलाइज करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई अ लो टेम्परेचर इज नेसेसरी, अ कोल्ड टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ benzene diazonium salts. So this aniline is treated with sodium nitrite and HCl which generate nitrous acid, and this nitrous acid convert this aniline into benzene diazonium salts. So आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा that will be N2 positive and Cl negative. Since we have taken HCl gas, so यहाँ पे आपके पास बन जाएगा benzene diazonium chloride. So जो प्रोडक्ट बनेगा that is benzene डायज़ोनियम क्लोराइड. ठीक है, ये जो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास बनने वाला है जिसके लिए हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ये बनेगा आपके पास बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड. दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस कन्वर्जन इज नोन एज डायazotization. दिस इज डायazotization. सो दिस रिएक्शन ऑफ प्राइमरी aromatic amines, that is aniline with sodium nitrite and HCl which produce nitrous acid, and that nitrous acid convert NH2 group into N2 positive and X negative or particularly Cl negative, that is formation of benzene diazonium chloride. This reaction is known as diazotization reaction. और ये जो benzene diazonium chloride बनेगा सर, ये benzene diazonium chloride stable होगा. This is stable up to, though this is very unstable, this is very unstable, but cold condition में कहीं ना कहीं इसमें stability impart होता है. So this is stable at cold condition only. NCERT has written down this point in its physical properties that this benzene diazonium chloride is stable at cold condition, at cold temperature, that is 0 degree. So stable at 0 degree Celsius. So this is stable at 0 degree Celsius. ठीक है जी,
0 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होगा। बट जैसे ही आप इसके एक्वस सॉल्यूशन को वार्म करेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक्वस सॉल्यूशन को वार्म करने पे ये हाइड्रोलाइज कर जाएगा और हाइड्रोलिसिस करने के बाद फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो जनरली एमीन्स में देखने को मिलता है। एमीन्स में, एलिफेटिक एमीन्स में, ये तो एरोमेटिक वाले हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेबिलिटी इनमें होता है, बट जो एलिफेटिक वाले हैं वो अनस्टेबल होते हैं और कभी भी एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स नहीं बनते। अब जब कभी इस प्रक्रिया को एलिफेटिक एमीन्स पे अप्लाई करोगे तो आप ये देखोगे कि जो आपके पास बनने वाले एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स होंगे वो अनस्टेबल होंगे और तुरंत हाइड्रोलाइज करके अल्कोहल जनरेट कर लेंगे और वहां पे डायरेक्ट अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। बट ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है इसमें रेजोनेंस के कारण कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी इंपार्ट होता है और ये स्टेबल होंगे सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे, लो टेम्परेचर पे स्टेबल होंगे, हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोलाइज करके अल्कोहल बना देंगे। ठीक है, सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, दैट इज बाय डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। सो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन से इसको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट शुड बी नोटेड व्हिच एनसीईआरटी हैज रिटन डाउन, दैट इज these benzene diazonium chlorides are to be used immediately after their preparation, after their synthesis। इनको जैसे ही सिंथेसाइज किया गया उसके बाद तुरंत इनको आपने यूज करना है इनके रिएक्शंस में, और जो भी रिएक्शन आप इनके थ्रू करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया इंटरमीडिएट हो जाते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इनको स्टोर करके रखेंगे तो हाइड्रोलाइज करके फिनोल बना देंगे, अल्कोहल बना देंगे। सो दे शुड बी यूज्ड इमीडिएटली। सो मैं नोट करके लिख लेता हूं, दे शुड बी यूज्ड immediately after their synthesis, after their preparation, and are not to be stored। और इनको स्टोर नहीं करना है। स्टोर इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप स्टोर करके रख नहीं पाएंगे, जो आपने रखा होगा वो कन्वर्ट होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया होगा और वो हाइड्रोलाइज करके फिनोल बना लिया होगा, इसलिए आप इनको स्टोर करके नहीं रख सकते। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स, दैट इज बाय डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स। अब बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स के केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर बोर्ड्स एग्जाम एज वेल एज for NEET and JEE. So we'll be talking about chemical reactions of benzene diazonium salts, right? So chemical reactions of benzene diazonium salts. अच्छा, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स की केमिकल रिएक्शन को एनसीईआरटी ने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सर एक तो वो वाले रिएक्शंस जिनमें बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट रिटेन रहेगा, जिनमें डायएजो ग्रुप रिटेन रहेगा। वो जो N2 वाला ग्रुप था, वो जो नाइट्रोजन प्रेजेंट था, वो N2 रिटेन रहेगा। और दूसरी तरह के वो रिएक्शंस जहां पे N2 रिप्लेस हो जाता है, N2 को कोई और रिप्लेस कर देता है। ठीक है, सो 2 तरह के रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। सो पहला रिएक्शन होगा रिटेंशन ऑफ डायएजो ग्रुप, रिटेंशन ऑफ डायएजो group, and the second type of reaction is replacement of diazo group or replacement of N2, which is basically N2, because that diazo group is replaced in the form of N2 gas। जब भी आप diazo group को हटाएंगे हमेशा N2 gas liberate होगा। so हम लिख सकते हैं replacement of diazo group और replacement of N2, replacement of diazo group और replacement of N2। ठीक है, सो 2 तरह के रिएक्शंस बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स की, एक जिनमें डायएजो ग्रुप रिटेन रहेगा और दूसरा जिनमें डायएजो ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। सो स्टार्ट करेंगे हम रिटेंशन ऑफ डायएजो ग्रुप से। कैसे डायएजो ग्रुप में रिटेंशन रहेगा, कौन कौन से रिएक्शन देखने को मिलेंगे, इनको हम देखने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रिटेंशन ऑफ डायएजो ग्रुप। सर डायएजो ग्रुप की रिटेंशन में हमें डायएजो ग्रुप को ट्रीट करना पड़ेगा। दिस डायएजो ग्रुप बेसिकली, और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ये जो डायएजो ग्रुप होगा ये खुद में एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है। नाउ रिएक्शन, लेट अस सपोज in case of retention of diazo group, the important chemical reaction that takes place are electrophilic substitution reactions। so इसमें आपको देखने को मिलेगा electrophilic substitution reactions। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। जो अंतर मैं बताने वाला हूं इसको ध्यान से समझिएगा इस चीज को। इन्हीं रिएक्शंस को बोला जाता है डायएजो कपलिंग। डायएजो कपलिंग
आर सिंपली कपलिंग रिएक्शन, डायजो कपलिंग रिएक्शन आर सिंपली कपलिंग रिएक्शन। इनको डायजो कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है, कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है, जो इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। So whenever diazo coupling takes place in benzene diazonium salts, they always follow electrophilic substitution reaction. They always follow electrophilic substitution reaction. Let us take an example of phenol. So मान लीजिए हमने कर दिया ट्रीट phenol with benzene diazonium salt और benzene diazonium chloride लिख लेता हूं मैं, ठीक है। So phenol with benzene diazonium chloride. Now this phenol, the OH group present on phenol shows plus R, due to which it shows orthopara directing nature. It shows orthopara directive influence. जो phenol आपके पास present होगा, this phenol, और to better understand this, मैं इसको इस फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकता हूं। So this is phenol, right? This is phenol, and the OH group present on phenol shows plus R effect, due to which this is orthopara directing. Whenever this phenol is treated with बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जब इसको हम ट्रीट कर देंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ, से हमने ट्रीट कर दिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ, दैट इज N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। इजी करने के लिए मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूं। अच्छा, जब कभी भी फिनोल का रिएक्शन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ होगा सर, क्योंकि फिनोल खुद एक एसिड की तरह बिहेव करता है, तो ये रिएक्शन आपको बेसिक मीडिया में देखने को मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए एनसीईआरटी ने, जब एनसीईआरटी इस रिएक्शन को लिखता है, तो एनसीईआरटी यहां पे लिखता है इस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, दैट इज अ बेसिक मीडिया इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन टू प्रोसीड। सो OH नेगेटिव लिख लेता है, दैट इज pH is greater than 7, it ranges from 7 to 9, so pH ranges from 7 to 9 और 8 to 9, ठीक है। बेसिक मीडिया में रिएक्शन देखने को मिलेगा, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। जब कभी भी आप फिनोल का रिएक्शन बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से करवा रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हमेशा आपको बेसिक मीडिया में रिएक्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि फिनोल खुद एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अच्छा, ये जो फिनोल आपके पास प्रेजेंट था सर, दिस फिनोल विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दिस OH ग्रुप इज बेसिकली ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। अब इसके पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, और उस हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूशन की वजह से यहां पे आपका ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा। दिस डायएजो ग्रुप विल रिप्लेस द हाइड्रोजन, विल रिप्लेस द इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम पैरा पोजीशन इन केस ऑफ फिनोल। सो बेसिकली फिनोल इज अंडरगोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिनोल इज अंडरगोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड नॉट डायजोनियम सॉल्ट, बिकॉज डायजोनियम सॉल्ट्स आर मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो डायजोनियम सॉल्ट में ये जो N2 पॉजिटिव ग्रुप प्रेजेंट है, दिस पॉजिटिव ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट डीएक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग एंड मेकिंग दिस बेंजीन रिंग मेटा डायरेक्टर। सो ये मेटा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस शो करेगा। सो ये इसके रिएक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका नहीं है, ये मैकेनिज्म इसके थ्रू देखा जाता है। सो फिनोल इज बेसिकली अंडरगोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ इन दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द हाइड्रोजन फ्रॉम द पैरा पोजीशन is substituted, this hydrogen from the para position is substituted by this diazo group। ये पूरा ग्रुप आके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और ये क्लोरीन के साथ हट जाएगा, और आप देखेंगे आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। you'll get a product this way, that is यहां पे OH मिलेगा आपको, and these two rings will get coupled to each other। ये दो कपलिंग आपको देखने को, रिंग का कपलिंग देखने को मिलेगा, और ये दोनों के दोनों जुड़ रखे होंगे नाइट्रोजन के थ्रू, दैट इज N डबल बॉन्ड N, और ये आपके पास एक और फिनाइल रिंग बनेगा, ठीक है। सो ये जो प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हुआ, ये जो प्रोडक्ट आपके पास बना, दिस प्रोडक्ट हैज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इन देम। इस प्रोडक्ट में आपको एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे हैं ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ जो लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट आपको देखने को मिलेंगे सर, ये लोन पेयर आपके दोनों रिंग्स में डिलोकलाइज कर सकते हैं। सो देयर इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इन दिस प्रोडक्ट। सो दिस प्रोडक्ट कंटेन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, this contain extended conjugation. So there is extended conjugation in product, right? And whenever this reaction takes place, whenever this phenol is treated with benzene diazonium salt, it undergo electrophilic substitution reaction, reaction. The product formed, the precipitates of product formed are generally in colored, वो colored compounds आपको देखने को मिलेंगे, and these colored compounds are known as dyes। ये जो आपको देखने को मिलेंगे प्रोडक्ट यहाँ पे, these products are known as dye। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये एक आपका डाई होगा। सो दिस इज अ डाई। अच्छा, अब इसका कलर कैसे याद रखेंगे आप? सो रिमेंबर दिस, व्हेन दिस इज ट्रीटेड विद फिनोल, फिनोल कंटेन O। जब आप ये प्रोडक्ट देखेंगे तो आप इस प्रोडक्ट में देखेंगे आपको O देखने को मिल रहा है, दैट इज फिनोल ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप। सो O फॉर ऑरेंज, सो दिस विल बी एन ऑरेंज कलर डाई। सो दिस डाई इज ऑरेंज कलर।
So this will be an orange color dye. And the IUPAC name of this group is, this dye, this orange dye is पैरा हाइड्रोक्सी. सर इसकी रेस्पेक्ट में नाम देना पड़ेगा आपको. जब आप इसकी रेस्पेक्ट में नाम लिखेंगे तो OH ग्रुप आपका पैरा पोजीशन पे हो जाएगा. सो दिस विल बी पैरा हाइड्रोक्सी एंड दिस इज एजो ग्रुप. दिस इज एजो ग्रुप, राइट. ओवर हियर इस स्टार्टिंग वाले में जब N ट्रिपल बॉन्ड N था और N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, दैट वाज डाइएजो ग्रुप एंड दिस इज एजो ग्रुप. वो डाइएजो ग्रुप था और ये एजो ग्रुप है. यहां पे कोई भी चार्ज आपको पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगा. सो दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी. पैरा हाइड्रोक्सी इसकी रेस्पेक्ट में हाइड्रोक्सी ग्रुप पैरा पे. सो दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी, राइट. दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एंड देन वी हैव एजो ग्रुप. और एजो के साथ आपको डाई बेंजीन लिखने की जरूरत नहीं है. एक बेंजीन आपने लिख दिया, अंडरस्टूड हो जाएगा कि दोनों तरफ से जुड़ रखा था. ठीक है. सो दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन. Para-hydroxyazobenzene. Now, in this reaction, we can see that this diazo group is not replaced. This diazo group retains as such. That is why they comes under a category of retention of diazo group. जहां पे आपका diazo group replace नहीं होगा, बल्कि diazo group retain रहेगा. So, in these reactions, in these replacement of diazo group, retention of diazo group, the diazonium group retains in product as well. These reactions are done for the preparation for the synthesis of dyes. We get a number of dyes. NCERT ने 2 लिख रखे हैं, बट आप जनरली इससे बहुत सारे डाइज प्रिपेयर कर सकते हैं. जैसे लाइक मिथाइल ऑरेंज आप प्रिपेयर कर सकते हैं या नेप्थोल का डाई आप प्रिपेयर कर सकते हैं. 1-2 मैं दिखा भी दूंगा यहाँ पे. अच्छा, इस ये जो रिएक्शंस आपके हैं, these reactions are known as diazo coupling reaction or coupling reaction simply. These are known as डायजो कपलिंग रिएक्शन और एजो कपलिंग रिएक्शन और सिंपली कपलिंग रिएक्शन, जहां पे आपके 2 बेंजीन रिंग आपस में नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ जाएंगे, N2 के थ्रू जुड़ जाएंगे. ठीक है. और ये जो रिएक्शन है ये मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को. लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ ट्रीट करने वाला, जिसको हम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ ट्रीट कर रहे हैं जिस कंपाउंड को, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा. और ये खुद में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाएगा, ये खुद एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा. ये जो आपका बेंजीन डायजोनियम ग्रुप है, this behave as electrophile. This behave as electrophile. Remember this is very important point. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा. ठीक है. सो फिनोल के साथ ट्रीट करने पे आपका एक ऑरेंज कलर का डाई बनेगा विच इज पैराहाइड्रोक्सीएजोबेंजीन which has extended conjugation in them. इसमें आपको extended conjugation देखने को मिलेगा. इसके फर्दर रिएक्शन हम करवा सकते हैं, इस पे भी फर्दर रिएक्शन हो सकते हैं. So we have to look whether this para-hydroxyazobenzene is ortho-para directing or meta-directing, और obviously this is ortho-para directing. So इसके बाद अगर रिएक्शन करवा दें, इसके बाद अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया जाए तो इसके बाद ये ortho-para डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस शो करेगा और इसके बाद भी हम रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं. So पहला रिएक्शन विद फिनोल where formation of orange color dye takes place, that is para-hydroxyazobenzene. अच्छा, इसी में सेम मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए जो दूसरे टाइप का रिएक्शन एनसीईआरटी लिखता है, दैट इज रिएक्शन विद एनालीन. रिएक्शन विद एनालीन, इसे मैं लिख लेता हूं. मैं नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एनालीन, राइट. नाउ इन दिस रिएक्शन अगेन वी विल कंसिडर एनालीन. NH2 हमने ले लिया, दिस इज एनालीन. And this aniline is treated with benzene diazonium chloride or benzene diazonium salts. So इसको हमने ट्रीट कर दिया benzene diazonium salts के साथ. That is N2 positive and Cl negative. Okay. अच्छा, जब इसके साथ हमने इसको ट्रीट कर दिया, now since aniline is base in itself, aniline is basic in nature. Aniline खुद में एक बेस की तरह बिहेव करेगा. So that means this diazo coupling or this coupling reaction, this particularly when treated with aniline, this coupling reaction takes place in acidic media. That is why NCERT has written down H positive. So NCERT जब भी आप इस रिएक्शन को कंसिडर करेंगे NCERT पे, तो NCERT यहाँ पे H positive लिखता है. इसका मतलब ये होगा कि स्लाइटली एसिडिक मीडिया में होगा, नॉट दैट मच एसिडिक, बट स्लाइटली एसिडिक मीडिया में रिएक्शन देखने को मिलेगा. दैट इज pH विल बी इक्वल टू 4 to 5 और 4 to 6, 4 से लेके 6 तक का pH देखने को मिलेगा. एक स्लाइटली एसिडिक मीडिया आपको देखने को मिल जाएगा. अच्छा, कपलिंग रिएक्शन होगा अगेन. And in this coupling reaction, the aniline will undergo electrophilic substitution reaction. Now, in aniline, this NH2, which contain a lone pair, a nitrogen lone pair is present. This will show plus R effect again, and due to this plus R effect, it becomes ortho-para directive in nature. और यहाँ से पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाला ये डायजो ग्रुप होगा. ये पूरा का पूरा डायजो ग्रुप, बेंजीन डायजोनियम ग्रुप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा देगा और ये H इस Cl के साथ हट जाएगा.
सो माइनस HCl, बाई प्रोडक्ट में माइनस HCl मैं भी लगा लेता हूँ, माइनस HCl, ठीक है। और आपके पास जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा दिस वे, where we have NH2 group over here, and this will be N double bond N, and again a phenyl ring this way. So again we get a cross conjugated product. फिर से हमें एक देखने को मिलेगा एक्सटेंडेड कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन प्रोडक्ट दोनों साइड चल रहा है, ठीक है। सो वी हैव एक्सटेंडेड कंजुगेटेड प्रोडक्ट, अगेन यहाँ पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ डाई, सो ये फिर से एक डाई बन जाएगा, दिस इज येलो कलर डाई, राइट। सो दिस इज येलो कलर डाई, सो दिस इज येलो डाई। सो एनालिन के साथ ट्रीट करने पे जो डाई मिलेगा दैट इज येलो इन कलर, एंड फिनोल के साथ ट्रीट करने पे जो डाई मिलेगा दैट इज ऑरेंज इन कलर। नाउ IUPAC नाम अगर इसका लिखना चाहें हम तो अगेन इसकी रेस्पेक्ट में, इस डायजो की रेस्पेक्ट में, इस एजो ग्रुप की रेस्पेक्ट में हम इसका नाम लिखेंगे। सो इससे पिछले वाले केस में पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी था, अब इस वाले केस में पैरा पोजीशन पे एमाइनो ग्रुप होगा। सो दिस इज पैरा एमाइनो एजोबेंजीन, राइट, दिस इज पैरा एमाइनो एजोबेंजीन। सो दिस इज पैरा एमाइनो एजोबेंजीन। सो ये जो डाई हमारे पास बनेगा दिस इज पैरा एमाइनो एजोबेंजीन, येलो कलर डाई, येलो कलर डाई देखने को मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज अ कपलिंग रिएक्शन, अगेन दिस इज अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। सर फिनोल के साथ ट्रीट करने पे फिनोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, और ये जो फिनोल का रिएक्शन डायजोनियम के सॉल्ट के साथ होगा ये आपको देखने को मिलेगा बेसिक मीडिया में। लेकिन जब एनालिन के साथ ये रिएक्शन होगा तो ये आपको एसिडिक मीडिया में देखने को मिलेगा, स्लाइटली एसिडिक मीडिया में रिएक्शन देखने को मिलेगा, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज अ काइंड ऑफ डाई व्हिच इज येलो इन कलर, एंड द IUPAC नेम विल बी पैरा एमाइनो एजोबेंजीन, राइट। सो ये आ गया आपका दूसरा रिएक्शन, दैट इज रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। ओके, नाउ आफ्टर दिस, now let us consider that this amino group or this aniline is substituted. This is the possible reaction as well. सर ये रिएक्शन भी पॉसिबल होगा कि अगर आप एनालिन के साथ डायजोनियम सॉल्ट्स को ट्रीट ना करके बल्कि एनालिन के सब्स्टिट्यूटेड चीजें ले लें। मान लीजिए हमने ले लिया NN डाइमिथाइल एनालिन, सपोज कर लीजिए हमने कंसिडर कर लिया एनालिन का एक डेरिवेटिव जहां पे हमने दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर रखा है दो मिथिल ग्रुप से, सो दिस वे, सो दिस इज NN डाइमिथाइल, this is NN dimethyl aniline, right? So when this NN dimethyl aniline is treated with benzene diazonium chloride, again it undergo electrophilic substitution reaction. This NN dimethyl aniline again undergo electrophilic substitution reaction and formation of para products. So this is N2 positive and Cl negative again, ठीक है, सेम रिएक्शन फिर से। So this is benzene diazonium chloride, benzene diazonium chloride, ठीक है। एनालिन फिर से बेसिक हो गया, स्लाइटली एसिडिक मीडिया आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। सो H पॉजिटिव के प्रेजेंस में रिएक्शन देखने को मिलेगा, अगेन कपलिंग रिएक्शन होगा, अगेन कपलिंग रिएक्शन होगा, डायजो कपलिंग अगेन, राइट, डायजो कपलिंग अगेन विल टेक्स प्लेस, अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज फॉलोड, अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज फॉलोड, ठीक है। सो यहां से पैरा से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि सर नाइट्रोजन का लोन पेयर अभी भी अवेलेबल है और इस नाइट्रोजन का लोन पेयर अभी भी अवेलेबल है, तो ये स्टिल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस शो करेगा, और हाइड्रोजन पैरा वाली पोजीशन से रिप्लेस हो जाएगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा ये डाइएजो ग्रुप, ये बेंजीन डाइएजो ग्रुप जो कि खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने वाला है। सो अगेन माइनस HCl, फ्रॉम दिस पोजीशन वी हैव H एंड Cl, माइनस HCl निकल गया, ठीक है, और ये पूरा ग्रुप कपल कर जाएगा। सो दिस वे विल गेट अ डाई दिस वे, CH3 कुछ इस तरीके से, और ये डाइएजो ग्रुप के थ्रू जुड़ जाएगा, एजो ग्रुप के थ्रू जुड़ जाएगा, ठीक है। ये फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, ये आपको फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस फाइनल प्रोडक्ट का अगर मैं नाम लिख लूं, सो दिस इज अगेन विद रिस्पेक्ट टू दिस इज पैरा पोजीशन, सो एट पैरा पोजीशन वी हैव डाइमिथाइल अटैच्ड टू N, सो वी हैव NN डाइमिथाइल, पैरा पोजीशन पे NN डाइमिथाइल देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको मिलेगा एजोबेंजीन। सो दिस इज पैरा डाइमिथाइल amine, para dimethyl amine, azobenzene, then azobenzene. So this is para dimethyl amine azobenzene, ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगेन दिस इज अ डाई, दिस इज अगेन अ कलर्ड डाई, ये फिर से आपको एक कलर्ड डाई देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा,
इसका मतलब ये होगा कि सर कभी भी आप डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहें और इलेक्ट्रोफाइल डायजोनियम ग्रुप की तरह आप ले लें, उस टाइम पे आपका रिएक्शन तब देखने को मिलेगा जब जब आपके पास बेंजीन के ऊपर ऐसा ग्रुप लग रखा है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। बट व्हेन वी टेक इनटू कंसीडरेशन द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की बात करेंगे सर उस टाइम पे डायज़ो कपलिंग देखने को नहीं मिलेगा, सिंस डायज़ो कपलिंग undergo or they follow electrophilic substitution reaction. They follow the mechanism which is similar in electrophilic substitution reaction, but in case of those groups which are meta directors or which are ring deactivators, they will not prefer to undergo electrophilic substitution reaction. ठीक है, मैं सवाल की फॉर्म में लिख लेता हूं, सपोज कर लीजिए मैं ऐसा लिख लूं, which of the following will not undergo azo coupling or simply coupling reaction with benzene diazonium chloride, that is AR N2 positive and Cl negative. ठीक है, इनमें से कौन सा वाला डायएजो कपलिंग नहीं दिखाएगा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स के साथ? ठीक है, सपोज कर लीजिए मैं 3 4 5 ऑप्शंस लिख लेता हूं. लेट्स से दिस वे, phenol obviously it's going to show the reaction, it's going to show electrophilic substitution reaction. ठीक है, मान लीजिए this way, suppose this way, ओके. अच्छा, इनमें से कौन सा ऐसा होगा जो डायएजो कपलिंग नहीं देगा या जो एजो कपलिंग रिएक्शन नहीं देगा? ठीक है सर, इनमें से वो वाला कंपाउंड जिस कंपाउंड में लगे हुए ग्रुप रिंग डीएक्टिवेटर हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल. ठीक है, सो ये जो ग्रुप लग रखा है, दिस ग्रुप शोज -R एंड -I. NO2 group shows very strong -R and very strong -I. It deactivates the benzene ring, and after deactivation of benzene ring, electrophilic substitution reactions becomes rare. फिर रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा. सो ये जो आपका होगा सेकंड वाला, ये डायएजो कपलिंग नहीं देगा. दैट इज नाइट्रोबेंजीन में डायएजो कपलिंग देखने को नहीं मिलेगा. सर पहले वाले में मिलेगा, व्हाई? बिकॉज दिस फिनोल कंटेन अ लोन पेयर, इट शोज +R. This is a very strong activator. So in this case, in this methoxy group is attached to benzene ring. In this anisole, this oxygen contain lone pair, again it shows +R. ये भी डायएजो कपलिंग दिखा देगा. इसमें भी डायएजो कपलिंग हो जाएगा. ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. सर इन दिस केस CN group is attached and this CN group shows -R as well. This shows -R. This is meta directing in nature. This is ring deactivator, and due to this ring deactivating property it does not undergo diazo coupling. So ये भी डायएजो कपलिंग में नहीं जाएगा. ठीक है ना, ये भी डायएजो कपलिंग नहीं देगा. So in this last case again, that is a substituted aniline is present. Obviously the lone pair on nitrogen will undergo a resonance. It shows +R and it's very good orthopara directed in nature. So ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा. So ये दूसरा वाला और ये जो फोर्थ वाला है, इनमें डायएजो कपलिंग देखने को नहीं मिलेगा. So ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि डायएजो कपलिंग उन वाले सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स में देखने को नहीं मिलेगा जिन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हों. सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स वालों में रिएक्शन देखने को नहीं मिलता. सो जो एजो कपलिंग है ये उनमें देखने को नहीं मिलेगा जहां पे आपके लगे होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. EWG वाले ग्रुप्स में रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा. NO2 में देखने को नहीं मिलेगा. CN को देखने को नहीं मिलेगा. CHO में देखने को नहीं मिलेगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अच्छा, इसके बाद लेट अस सपोज दैट benzene diazonium salts or benzene diazonium chloride is treated with beta naphthol. So मान लीजिए मैं कुछ रिएक्शन को इस तरीके से लिख दूं. We have benzene diazonium salts, that is N2 positive, Cl negative, this way, aromatic diazonium salts. ठीक है, और इसको ट्रीट कर दें बीटा नेप्थोल के साथ. ठीक है, so beta naphthol is this way, where two benzene rings are fused to each other from two carbon atoms and a OH group is present at this position. Right, OH group is present at this position. Now, in this case, again we can see this is similar to that of phenol, but particularly in this beta naphthol, this is called beta naphthol. This is beta naphthol. Now, in this beta naphthol,
with respect to OH group, the para position is occupied. So with respect to this OH group, this para position is already occupied. So this OH group will not direct the incoming diazo electrophile to the para position, since para position was already occupied, but there is availability of ortho position. So this ortho position and this ortho position, अभी दो ortho position available है. So इस ortho position पे electrophilic substitution देखने को मिलेगा, right? So इस ortho position पे और इस ortho position पे देखने को मिलेगा electrophilic substitution reaction. Again in slightly basic media, since this behave as acid, so slightly basic media में pH ग्रेटर देन 7 लिख लेता हूं मैं और OH नेगेटिव लिख लेता हूं मैं, ठीक है? तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से, दिस बीटा नेप्थोल, दिस इज OH ग्रुप, और इस OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो पोजीशन होगा, दैट ऑर्थो पोजीशन, द हाइड्रोजन फ्रॉम दैट ऑर्थो पोजीशन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस डाइएजो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप. ये जो डाइएजोनियम इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप होगा ये इसको रिप्लेस कर देगा. सो यहां पे आपका जुड़ेगा N, दिस डबल बॉन्ड N एंड दिस फिनाइल रिंग, राइट? ये फिनाइल रिंग यहां पे जुड़ जाएगा और यहां से Cl और यहां से H सब्स्टिट्यूट हो गया, ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया और ये पूरा आपका इलेक्ट्रोफाइल आके यहां पे अटैच हो गया और ये आपके पास बन जाएगा ऑरेंज टू रेड कलर का डाई. सो दिस इज ऑरेंज टू रेड, दिस इज ऑरेंज टू रेड, दिस इज ऑरेंज टू रेड डाई, ऑरेंज टू रेड डाई देखने को मिल जाएगा, राइट? दिस इज ऑरेंज टू रेड डाई आपको देखने को मिलेगा, ऑरेंज टू रेड डाई, ये बीटा नेप्थोल का डाई आपको देखने को मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज रिएक्शन विद बीटा नेप्थोल. सो इन दोस केसेस, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे लिख लेता हूं. ये तो हमने जान लिया कि अगर आपका पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड होगा जिसमें आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना चाह रहे हैं डाइएजो के साथ, जिसको ट्रीट करना चाह रहे हैं, अगर उसमें पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड होगा सर, उस टाइम पे ऑर्थो पोजीशन अगर अवेलेबल हुआ तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक हो जाएगा. सो सपोज कर लीजिए मैं इस तरीके से रिएक्शन लिख दूं, लेट अस से वी हैव दिस NH2 group and this OH group. Oh, this is very good. So when both amino group and phenol group are present in benzene ring, and we are supposed to treat this with benzene diazonium salts. So two possibilities are there. So now it depends on reaction, the pH of the media. Now it depends on the pH of the solution in which reactions takes place. अब ये pH पे depend करेगा. सर अगर pH 7 से ऊपर हुआ, that means अगर बेसिक मीडिया हुआ, so बेसिक मीडिया में एसिड रिएक्शन दिखा देगा. So बेसिक मीडिया में आप देखेंगे OH नेगेटिव ऑपरेटिव हो जाएगा. So उस टाइम पे जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस शो करेगा वो OH नेगेटिव शो करेगा, और इस OH नेगेटिव के रेस्पेक्ट में रिएक्शन देखने को मिलेगा. तो यहां पे लिख लेता हूं मैं विद रेस्पेक्ट टू OH नेगेटिव, क्योंकि आपके पास बेसिक मीडिया है और बेसिक मीडिया में एसिड ऑपरेट करेगा. So इसके थ्रू रिएक्शन देखने को मिलेगा. Now since with respect to this OH, this para position is already occupied, so we are left with ortho positions only. So this OH will direct this incoming electrophile towards the ortho position, either to this position or to this position. So this when treated with benzene diazonium salts. अब मैं इसको और सिंपली इस तरीके से लिख लेता हूँ. आफ्टर लुकिंग अपॉन सो मेनी रिएक्शंस, अब इसको हम सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं. So जब इसको मैं बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स के साथ, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट कर दूंगा, so उस टाइम पे ऑर्थो वाले पोजीशन से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से. दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट. वी हैव NH2 ग्रुप ओवर हियर, दिस इज OH ग्रुप, और इस ऑर्थो पोजीशन पे ये डाइएजो ग्रुप आके बैठ जाएगा. दैट इज N डबल बॉन्ड N and this phenyl ring. So this will be the final product. So this is the final product of reaction. ठीक है. अच्छा, इसका IUPAC नॉर्म में लिख दूं, so नंबर कर देंगे. This is 1 2 3 4. ठीक है. IUPAC नोमेनक्लेचर अगर लिखना चाह रहे हैं तो हमने नंबर कर दिया. नंबर करने के बाद आप देखेंगे 4 पे आपका अमाइनो देखने को मिलेगा. So we have 4 amino. 4 पे अमाइनो देखने को मिलेगा. Then at 3 we have phenyl azo. Then we have phenyl azo. Okay. At position number 3 we have phenyl azo. Okay, and this benzene ring with OH group is phenol. या इसको आप 3-azophenyl भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आ जाएगा. ठीक है. अब इसको 3-azophenyl भी लिख सकते हैं. दिस इज 3-azophenyl देन phenol. दिस इज 3-azophenyl and then phenol. ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा. Now when this given compound, when this 4-amino phenol is again treated with
बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बट द pH ऑफ मीडिया इज लेस देन 7। अब pH 7 से कम। सर अगर pH 7 से कम होगा दैट मीन स्लाइटली एसिडिक मीडिया, 4 to 5, 5 to 6 pH जब होगा, स्लाइटली एसिडिक मीडिया में NH2 ग्रुप ऑपरेट करेगा और ये NH2 डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस शो करेगा और इस NH2 की रेस्पेक्ट में ग्रुप जुड़ेगा। सो NH2 विद रेस्पेक्ट टू NH2, विद रेस्पेक्ट टू NH2। अच्छा, NH2 is again orthopara directive in nature. Now since para position is already occupied by OH group, so with respect to this NH2 group, these two ortho positions are available. So इस ortho position पे जाके आपका ग्रुप जुड़ जाएगा और आपके प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। So OH group as such, NH2 भी बिल्कुल सेम देखने को मिल जाएगा और इन ऑर्थो पोजिशंस पे ग्रुप देखने को मिल जाएगा। सो इस ऑर्थो पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाएगा दिस वे और ये बेंजीन रिंग। ठीक है, अगेन इसका IUPAC नाम सेम आ जाएगा। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। सो वी हैव 4 अमाइनो एंड देन 3 एजोफिनाइल एंड देन फिनोल, 3 एजोफिनाइल एंड देन फिनोल। ठीक है, बिल्कुल सेम नाम आ जाएगा, बस थोड़ा नंबरिंग में फर्क आ जाएगा। सो ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। So these are the reactions of benzene diazonium salts, which are coupling reactions. When benzene diazonium salts are treated with those substituted benzenes which contain those groups which are electron releasing in nature, which shows plus R, and therefore they can undergo electrophilic substitution reactions radially, and this benzene diazonium group itself behave as electrophile. So this benzene diazonium group is going to replace hydrogen as electrophile from the ortho or the para position in case of those substituted benzene rings which contain electron releasing groups. So like reaction with phenol, reaction with N-dimethyl benzene or N-dimethyl aniline, reaction with aniline itself, reaction with beta naphthol itself, and in those cases where both OH group and NH2 group are present, सर उस टाइम पे मीडियम पे डिपेंड करेगा कि उसका pH क्या होगा। जिस अगर एसिडिक pH होगा तो NH2 की रेस्पेक्ट में ग्रुप जुड़ेगा, NH2 की रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर OH ग्रुप आपका OH ग्रुप की रेस्पेक्ट में रिएक्शन करना है तो उस टाइम पे आपको pH बेसिक रखना पड़ेगा, 7 से ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, सो दीज आर the retention reactions. So these are those chemical reactions of benzene diazonium salts in which the diazo group is retained, जहां पे आपका azo group retain देखने को मिल जाएगा और इनमें मोस्टली आपको फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा कि डाइज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इन्हीं रिएक्शंस को कंटिन्यू करते हैं। कुछ यहाँ पे मैं सीक्वेंस रिएक्शन लिख देता हूँ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू CBSE, विद रिगार्ड टू NEET, विद रिगार्ड टू JEE। ठीक है, सपोज कर लीजिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ इस तरीके से। Okay, so we have benzene as substrate. So starting from benzene, ओके ठीक है, इस रिएक्शन को ट्राई करते हैं कि कैसे इस रिएक्शन में आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म फॉलो होंगे, कौन कौन सा रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ एज वेल। अब वीडियो को पॉज करके खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस रिएक्शन द गिवन सबस्ट्रेट इज बेंजीन इटसेल्फ। ठीक है, बेंजीन आपके पास दिया गया है। सो दिस बेंजीन इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 व्हिच इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। दिस इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, right, a very famous reagent for nitration. This is nitrating mixture, and this nitrating mixture generates an electrophile NO2 positive, that is nitronium ion is generated. So it generates NO2 positive electrophile, and this NO2 positive electrophile will undergo electrophilic substitution reaction and will form simply nitrobenzene. So आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो nitrobenzene होगा। So this is known as nitration, वेरी फेमस रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। सो ए जो आपके पास बनेगा दैट इज नाइट्रोबेंजीन। सो जो ए देखने को मिलेगा दैट इज नाइट्रोबेंजीन। सो विल गेट नाइट्रोबेंजीन एज ए प्रोडक्ट दिस वे, NO2 नाइट्रोबेंजीन, राइट। सो ए इज नाइट्रोबेंजीन। नाउ दिस नाइट्रोबेंजीन इज देन ट्रीटेड विद Fe and HCl. It is then treated with the iron scraps and hydrochloric acid, which is mentioned on NCERT in very bold letters. ये बहुत important reaction है। This iron and HCl
will form FeCl3, and this FeCl3 will reduce, this FeCl3 will reduce the NO2 group to NH2 group. So this is basically a reduction reaction. This is basically a reduction step, and in this reduction step, this NO2 group get reduced to NH2 group. So whenever nitro compounds are treated with SN plus HCl, tin plus HCl, or Fe plus HCl, or hydrogen in presence of Pd or nickel, they undergo reduction and NO2 group get replaced by NH2 group. So जो B हमारे पास बनेगा, that is aniline itself. So B बनेगा आपके पास एनालीन NH2, ठीक है। अच्छा, अब यहां से भी अनुमान लगा सकते थे सर, इसके बाद डायजोनियम सॉल्ट्स के साथ ट्रीट कर रखा है और रिएक्शन आप देख पाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, ठीक है। 273 केल्विन से लेकर 278 केल्विन तक रिएक्शन देखने को मिलेगा। सो व्हेन एनालीन इज ट्रीटेड विद बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इट विल अंडरगो कपलिंग रिएक्शन, जो हमने अभी तक देखा। सो इट विल अंडरगो कपलिंग रिएक्शन, it will undergo electrophilic substitution reaction, extended conjugated products are formed, dyes are formed, colored dyes are formed, ठीक है। तो जो C प्रोडक्ट बनेगा, C प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा that is para amino azobenzene. So this way NH2, then we have N double bond N, and this way so ये बन जाएगा C हमारे पास, that is para hydroxy azobenzene, ठीक। this this is para amino azobenzene, yellow color dye, येलो पीपीटीज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस डाई, this para amino azobenzene is treated with CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3, which is Friedel-Crafts alkylation. This is Friedel-Crafts alkylation. This Friedel-Crafts alkylation is also a type of electrophilic substitution reaction. It follow aromatic electrophilic substitution mechanism, Arrhenius-amine mechanism, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरे ग्रुप पे ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना होगा सर, ये जो Friedel-Crafts alkylation होने वाला है, ये Friedel-Crafts alkylation में आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जुड़ेगा, ये कौन डायरेक्ट करेगा सर? इस टाइम पे ये जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है वो NH2 शो करेगा। This NH2 which contain a lone pair will show directive influence in case of dyes, in case of these azo compounds. ये NH2 group आपका डायरेक्ट करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा। Now since this NH2 group is OP director, this is OP director, but with respect to NH2 this para position is already occupied. With respect to NH2 this para position is already occupied. Sorry, this para position is already occupied. सो पैरा पे तो जुड़ने की पॉसिबिलिटी खत्म होगी, बट सर ऑर्थो तो अवेलेबल है। सो डी हमारे पास क्या बन जाएगा कि ऑर्थो पोजीशन पे NH2 ऐसे ही रहेगा और इस ऑर्थो पोजीशन पे आके मिथिल ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, यहां पे ग्रुप जुड़ जाएगा और बाकी सारा सेम रहेगा। दैट इज N डबल बॉन्ड N एंड देन वी हैव दिस फिनाइल रिंग, राइट। सो वी गेट पैरा अमाइनो, or in other term we can say we get 4 amino 3 methyl and then azobenzene, 4 amino 3 methyl azobenzene, right? We get 4 amino 3 methyl azobenzene, ठीक है। और जो रिएक्शंस होंगे एनालीन के बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ या बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ या फिनोल के बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स के साथ, सर ये रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी होते हैं। दैट इज व्हाई दीज आर आल्सो नोन एज एजो डाई टेस्ट। सो फिनोल के रिएक्शन जितने भी हमने अभी तक देखे या एनालीन के रिएक्शन जहां पे डाई बनते हैं, क्योंकि सर ये रिएक्शंस यूज हो जाते हैं एलिफेटिक अल्कोहल से एरोमेटिक अल्कोहल में अंतर करने के लिए। दीज आर यूज्ड एज डिस्टिंग्विश टेस्ट to differentiate between aliphatic alcohol and aromatic alcohol. Since aromatic alcohol, since phenol can undergo diazo coupling reaction but aliphatic alcohol does not, since aromatic aniline can undergo diazo coupling but aliphatic amines does not, so these are kind of distinguished tests as well. These are also known as diazo coupling test, ठीक है। so यहां से यहां की जो प्रक्रिया थी जहां पे आपके पास डाई बनते थे, इसको diazo coupling test भी बोलते हैं, ठीक है। or simply you can say azo dye test. These are also known as azo dye test. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो एजो डाई टेस्ट भी इनको बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और रिएक्शन इसी तरीके से अगर हम देखना चाहें, मैं इसको रब कर लेता हूं और एक और सीक्वेंस रिएक्शन लिख लेता हूं, ट्राई कर सकते हैं पॉज करके। नाउ लेट अस सपोज okay, we get A, right?
ओके okay, at 0 degrees Celsius we get C. Okay, so you can try this reaction by pausing the video. ठीक है, मैं solve कर लेता हूँ. So the given substrate is toluene, right? So given substrate is toluene. अच्छा, ये second step बिल्कुल वैसा जैसे हमने अभी ऊपर कर रखा था, that is nitration step. Now NO2 positive electrophile is generated, and that NO2 positive electrophile will be directed towards para position with respect to this CH3 group. Since this is ortho para directing in nature, so the A product formed will be, so this A will be this way. We have CH3 over here, और ये जो आपका पोजीशन होगा पैरा पोजीशन, इस पैरा पोजीशन पे जाके नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा. ठीक है, सो नाइट्रो ग्रुप यहां पे जुड़ जाएगा. ये A प्रोडक्ट बनेगा अपने पास. नाउ दिस A is then treated with H2 in presence of PD. It will undergo reduction. It will undergo reduction, and this nitro group will get reduced to NH2 group. So when this nitro compounds are treated with H2 in presence of PD, they undergo reduction and NO2 group get replaced by NH2 group. So B formed will be this way. So जो B हमारे पास बनेगा कुछ इस तरीके से होगा. This is CH3 group and we get NH2 group over here, right? ये बन जाएगा आपके पास. That is paratoluidine, right? We'll get paratoluidine. So paratoluidine बन जाएगा अपने पास. Now this paratoluidine is then treated with sodium nitrate and HCl at ice bath temperature, that is at 0 degrees Celsius. It will undergo diazotization. So it will undergo diazotization. So diazotization will take place. Diazotization will take place and benzene diazonium salts are formed. So this NH2 will get converted into N2 positive and Cl negative, right? So C जो बनेगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके से होगा. That is CH3 over here, and we'll get N2 positive and Cl negative. That is paramethyl benzene diazonium chloride. So this is paramethyl benzene diazonium chloride. Now after this formation of benzene diazonium chloride, it is treated with NaNO2 in presence of copper and heat. अब बेसिकली इससे पहले एक और स्टेप मेरे को करना पड़ रहा है, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा, तो मैं लिख लेता हूँ 1 करके और इसको 2 करके लिख लेता हूँ. इट इज फर्स्ट ट्रीटेड विद HbF4. It is first treated with fluoroboric acid, right? It is first treated with fluoroboric acid. Fluoroboric acid. So when these diazonium salts are treated with fluoroboric acid, they generate tetrafluoroborate. ये salts बना लेंगे वापस से, tetrafluoroborate बन जाएगा, ठीक है. अच्छा, tetrafluoroborate के साथ टेट्राफ्लोरोबोरेट बनने के बाद जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट करेंगे कॉपर की प्रेजेंस में और हीट कर देंगे, तो आप देखेंगे ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगा, एंड दिस इज रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप. दिस इज रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप. ठीक है, मैं बना लेता हूं इसको. जब आप HbF4 के साथ इसको ट्रीट करेंगे कुछ इस तरीके से आपके पास देखने को मिलेगा CH3 एंड वी गेट N2 पॉजिटिव एंड BF4 नेगेटिव. ये कुछ इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव. दैट इज पैरामिथाइल बेंजीन डायazonium tetrafluoroborate, and this benzene tetrafluoroborate, benzene diazonium tetrafluoroborate, when treated with a solution of aqueous solution of sodium nitrite in presence of copper and then heat, then this should be heated, तो आपके पास रिप्लेसमेंट हो जाएगा और ये पूरा का पूरा ग्रुप रिप्लेस कर जाएगा NO2 ग्रुप से. सो कुल मिला के हमारे पास इस पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा. दिस इज मिथिल ग्रुप और यहाँ पे अटैच हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप. NO2 ग्रुप का अटैचमेंट देखने को मिलेगा, ये बनेगा D. नाउ दिस इज देन ट्रीटेड विद KMnO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एंड दिस KMnO4 इज यूज्ड फॉर बेंजाइलिक ऑक्सीडेशंस ओवर हियर.
KMnO4 के बहुत सारे काम, और यहाँ पे जो काम देखने को मिलेगा दैट इज बेंजाइलिक ऑक्सीडेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी भी बेंजीन पे सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा और उस कार्बन पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन अवेलेबल होगा, तो KMnO4 लगा रखा है तो बेंजाइलिक ऑक्सीडेशंस कर देगा, और बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन करने के बाद दिस CH3 ग्रुप will get converted into COOH group. So यहाँ पे आपका बन जाएगा COOH and this will be NO2. So we get para-nitrobenzoic acid as product. So जो product हमें देखने को मिलेगा that is para-nitrobenzoic acid. Para-nitrobenzoic acid will be the final product of this reaction. ठीक है? So ये sequence reaction था. इसमें हमने क्या किया? In this reaction the toluene is first treated with nitrating mixture, that is a mixture of nitric acid plus H2SO4. It will undergo nitration and formation of 4-nitrotoluene will takes place. Then this 4-nitrotoluene is treated with H2 in presence of PD. It will undergo reduction and this NO2 group will get reduced to NH2 group and this product is formed, that is paratoluidine is formed. Now this paratoluidine is then treated with sodium nitrite and HCl at 0 degrees Celsius. It will undergo diazotization and this NH2 group will get converted into diazonium group. So diazonium, so that is a paramethyl benzene diazonium chloride will be formed, and this after this we are treating this with HbF4. उसके बाद हमने इसको फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया. After treating fluoroboric acid, then we get paramethyl. This methyl group is always there as we have taken in this reaction first. So this paramethyl benzene diazonium tetrafluoroborate will be formed, and when this benzene diazonium tetrafluoroborate is treated with an aqueous solution of sodium nitrite in presence of copper followed by heat, that replacement reaction will take place and this N2 positive BF4 negative group is replaced by NO2 group. This is replaced by NO2 group along with byproducts like N2, BF3 and NAF is also there. वो byproduct में देखने को मिलेंगे. And then this is treated with KMnO4 followed by hydrolysis, which is used for benzylic oxidations, and this CH3 group will get converted into COOH group, and the product formed will be para-nitrobenzoic acid. So para-nitrobenzoic acid will be the final product of this reaction, right?